हाथ रखो। On the behalf of prosecution in the case of State versus Salim and others. So the counsel here seeking permission to begin the case again. The charge involved in my case are 364A, 302 along with section 34 and 120B of IPC. The facts are as follows. Shantibai is the grandmother of the deceased, Devibai is the mother, Pankaj elder brother, Salim is the main accused along with the co-accused Muber and Feroz. On 24th November, Shantibai lodges a missing report in a police station of his grandson Gaurav. He is a student of class 9 and has not been returned home since 12 p.m. of 22nd November. They have inquired at nearby places but got no clue. The missing report number 100/05 was registered by sub-inspector that a ransom call from an unknown person has been received on 27th of November at around 4:32 p.m. on their number mentioned in the memorandum, demanding 5 lakh rupees. Otherwise, Gaurav will be killed. Police installed caller ID at the residence of Shantibai on 29th of November at around 9:12 p.m. Again, a call on landline number which was made using same number as mentioned in the memorandum. The same unknown person has threatened them, saying that even after money is not paid within 24 hours, then he will kill Gaurav. Sub-Inspector FIR bearing crime number 912 on 1st of December and started the investigation. Statements were recorded regarding missing of Gaurav since noon of 22nd of November and receiving calls from an unknown person on their landline. It was revealed during investigation that the SIM number, as already mentioned in the memorandum, was issued by Airtel company in the name of Sangram Singh. The document of Sangram Singh were fake and no person of such name could ever be found. During investigation, IMEI number 123456789 of that number, it was found that SIM, which already mentioned, was being used in the same mobile prior to the incident in 21 November. The SIM was issued in the name of some Salim. Salim was taken into custody on 1st December at around 7 p.m. And he revealed that he, along with co-accused Mubin and Feroz, picked the Gaurav from the school and took him to the factory, which was closed from a long time. When their demand for ransom was not fulfilled, they killed Gaurav in the night of 31st of November by strangulation, and co-accused Mubin and Feroz cut the body from neck into 2 parts and threw both parts in the jungle separately, and kept the mobile used in the crime in a box at his residence. After recording a memorandum under Section 27 of Indian Evidence Act, a mobile which is used in committing the crime and recovered from the house of Salim, which was seized before witness Ram and Mohan. Seizure memo was also prepared, and during search in jungle, both parts of dead bodies were found, which were sent to the district hospital for post-mortem. Dead body was identified by the mother of the deceased, and a memo was prepared. Thereafter, co-accused Mubin and Feroz were taken into custody, and their memo was recorded, in which they admitted that the commission of the with the Salim. A motorcycle was seized from Mubin. Seizure memo was prepared on information of accused Feroz. A sharp-edged sword was seized from his house. Seizure memo was prepared. The sword was sent to FSL for the examination. All the details and documents of both SIM along with the certificate under Section 65B of Indian Evidence Act were obtained from Kapil, nodal officer of the Airtel company, and all call details and relevant information of landline number as mentioned was obtained from Sunil, nodal officer of BSNL company. Investigating officer Umesh Shankar came to know about the CCTV camera installed in showroom just opposite to the school. On going through the footage of relevant date and time, 2 boys having physical appearance similar to the accused Mubin and Feroz were going on a motorcycle with a boy which was resembling the deceased Gaurav. Though the footage was not clearly visible, but the CD of relevant part of the CCTV footage got prepared and produced as an electronic evidence. After the completion of investigation, accused persons were prosecuted. Charges on the accused person. There are 4 charges on the accused person under Section 34, act done by several persons in furtherance of common intention. Section 120B, that is punishment for criminal conspiracy. Section 364A, kidnapping for ransom, and Section 302, punishment for murder. मैं अपनी साइड से कुछ साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश करने की अनुमति चाहती हूँ।
प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 पंकज ने बताया कि उसे दिनांक 22/11/2005 को स्कूल के पास कोई ज़रूरी काम था। दोपहर लगभग 12 बजे वापस आते समय उसने स्कूल के बाहर गौरव को देखा कि मुबीन व फिरोज मोटरसाइकिल पर गौरव को बीच में बिठाकर ले जा रहे हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को गलत बताया कि आरोपी मुबीन व फिरोज को घटना के दिन मोटरसाइकिल पर गौरव को ले जाते हुए देखने की बात पुलिस के सामने नहीं बताई थी और फर्स्ट टाइम न्यायालय में बता रहा है। इस बात को भी गलत बताया कि वह मृतक गौरव का चचेरा भाई है। प्रोसिक्यूशन विटनेस शांति बाई नंबर 2 ने प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार ही न्यायालय में साक्ष्य दिए हैं और गुमशुदगी रिपोर्ट एग्जिबिट P1 व FIR एग्जिबिट P2 लेख कराना प्रमाणित किया है। क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को भी सही बताया है कि पंकज मृतक गौरव का चचेरा बड़ा भाई है जो उसके साथ ही रहता है। राम प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 व मोहन प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 ने भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने अभियोजन द्वारा लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाने पर आरोपी सलीम के मेमोरेंडम एग्जिबिट P3 मोबाइल जब्ती पंचनामा एग्जिबिट P4 आरोपी मुबीन व फिरोज के मेमोरेंडम क्रमशः एग्जिबिट P5 व 6 तथा मोटरसाइकिल जब्ती पंचनामा एग्जिबिट P7 व तलवार जब्ती पंचनामा एग्जिबिट P8 पर सिग्नेचर होने की बात को सही बताया है। प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 देवी बाई ने भी शांति बाई के समान ही कथन न्यायालय में किया है। इसके अलावा देवी बाई ने प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 ने जो सब के सिर को शिनाख्त कर शिनाख्ती पंचनामा पर एग्जिबिट P9 की अंतर्वस्तु को प्रमाणित किया है। एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 ने भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार ही सिम नंबर 98260552 तथा सिम नंबर 77123123222431 की कॉल डिटेल से रिलेटेड दस्तावेजों को विधिवत प्रमाणित किया है। कॉल डिटेल क्रमशः एग्जिबिट P10 व 11 है, जिसके संबंध में इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B प्रमाण पत्र एग्जिबिट P12 है। उक्त कॉल डिटेल से यह स्पष्ट हो गया है कि दिनांक 27/11/2005 को मोबाइल जिसका IMEI नंबर 123456789 है में सिम नंबर 9826055222 प्रयुक्त की जा रही थी। उस मोबाइल में सिम नंबर 7712322431 से दिनांक 27/11/2005 व दिनांक 29/11/2005 को लैंडलाइन नंबर 352825 पर कॉल किए थे। विटनेस के अनुसार हर मोबाइल नंबर का एक IMEI नंबर स्पेसिफिक होता है। प्रोसिक्यूशन BSNL के नोडल अधिकारी सुनील प्रोसिक्यूशन विटनेस 7 ने भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार ही अपने कथन देते हुए लैंडलाइन नंबर 352825 की कॉल डिटेल एग्जिबिट P13 व साक्ष्य एग्जिबिट P14 में को विधिवत प्रमाणित किया है। नारायण पुलिस ने उसके शोरूम पर आकर घटना दिनांक 22/11/2005 की CCTV फुटेज देखी थी और पुलिस फुटेज को अपने साथ पेन ड्राइव में कॉपी करके ले गई थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में इस बात को भी सही बताया कि CCTV फुटेज में स्पष्टता नहीं थी और किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से पहचान पाना भी संभव नहीं था। डॉक्टर उमेश त्रिवेदी प्रोसिक्यूशन विटनेस 9 ने सबका शव परीक्षण कर रिपोर्ट एग्जिबिट P15 को विधिवत प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार मृतक का शव 2 भागों में बटा था, सिर व धड़ अलग अलग था। उनके अनुसार अगर मृत्यु किए जाने के पश्चात सिर को धड़ से अलग किया गया है और जो मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 4-5 दिन पहले का बताया है। और जो डॉक्टर उमेश द्विवेदी हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी सेम बात को रिपीट किया। कुमार चंद्र प्रोसिक्यूशन विटनेस 10 ने दिनांक 24/11/2005 को शांतिबाई के बताए अनुसार एग्जिबिट P1 की गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 1/12/2005 को अपराध क्रमांक 912/05 की FIR एग्जिबिट P2 लेख करना बताया है। साक्षी के अनुसार उसने शांतिबाई प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 के घर पर कॉलर ID इंस्टॉल करवाई थी। जांच के दौरान मोबाइल नंबर 9826055222 व 7712322431 तथा लैंडलाइन नंबर 352825 की कॉल डिटेल व दस्तावेज आदि संबंधी नोडल अधिकारी से विधिवत प्राप्त किए थे।
आरोपी सलीम को दिनांक 1/12/2005 को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, जिसमें उसने सभी सह आरोपीगण के साथ घटना कार्य करना व घटना में प्रयुक्त मोबाइल घर पर संदूक में होना बताया था। इस संदर्भ में एग्जिबिट P3 का मेमोरेंडम बनाया था। आरोपी सलीम द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मोबाइल आर्टिकल A1 जब्त किया गया, जिसका IMEI नंबर 123456789 था। इस संबंध में जब्ती पंचनामा एग्जिबिट P4 बनाया था। आरोपी मुबीन व फिरोज द्वारा पेश किए जाने पर एक धारदार तलवार A2 जब्त कर जब्ती पंचनामा क्रमशः एग्जिबिट P7 व 8 बनाए थे। जंगल से दिनांक 1/12/2005 को मृतक का धड़ व सिर मिले थे, जिन्हें चिकित्सीय परीक्षण हेतु अस्पताल भेजा था। नारायण जो प्रोसिक्यूशन फिटनेस एक्ट के शोरूम से CCTV फुटेज की CD लेकर पेश की है। घटना में जब्तशुदा तलवार को जांच हेतु FSL भेजा था। FSL रिपोर्ट एग्जिबिट P16 है। साक्षी ने प्रति परीक्षण में इस बात को भी सही बताया है कि जो FIR रिपोर्ट एग्जिबिट P2 मृतक की गुमशुदगी के लगभग 8 दिन बाद लिखी गई है। इस बात को भी सही बताया कि तलवार की जो FSL रिपोर्ट आई है एग्जिबिट P16, उसके अनुसार उस पर कोई भी ब्लड नहीं पाया गया है और ना ही तलवार को जब्त किए जाते समय उस पर कोई भी ब्लड के निशान थे। इस बात को भी सही बताया है कि साक्षी पंकज ने पुलिस के दौरान एग्जिबिट D1 के दौरान दिनांक 22/11/2005 को आरोपी मुबीन व फिरोज को मोटरसाइकिल पर गौरव को ले जाने की बात नहीं बताई थी। शोरूम के CCTV फुटेज के संबंध इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। Stated that the prosecution has discharged the burden of proving the case beyond reasonable doubt and the statement of witnesses are trustworthy. It has been proved by cogent and reliable evidences that the accused Mubin and Feroz were last seen together with the deceased Gaurav. It is also proved that the ransom calls were made through the mobile of accused Salim. It has been requested that the accused persons be avoided capital punishment. वो कंटिन्यू है पॉज करके। मैं यहाँ से निवेदन चाहता हूँ डिफेंस की तरफ से बचाव पक्ष यह है कि जांच के जब ने पुलिस उमाशंकर द्वारा कोई रिपोर्ट लिखवाई गई थी 24/11/2005 को, तो उसमें इसमें संभव था कि मतलब दादी को यह कन्फर्म नहीं हुआ था कि द्वारा की मृत्यु हुई है कि नहीं। 24/11/2005 को रिपोर्ट लिखवाई गई थी, द्वारा निर्णय किया गया था। तब प्रथम सूचना रिपोर्ट 1/12/2005 को लिखाई गई थी, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन द्वारा उमाशंकर द्वारा लीक कराई गई थी। इसके साक्ष्यों के द्वारा जो प्रथम साक्ष्य उसकी माँ थी, जो साक्षी थी शांति भाई साक्ष्य 2, उसने बताया था कि गौरव की मृत्यु का स्पष्ट नहीं होती, संदेह के, क्योंकि उसे नहीं पता लगा पा रही थी कि गौरव की हत्या हुई कि नहीं हुई, उनकी संदेह था। और उसके जब पंकज था विटनेस 1 साक्ष्य के द्वारा पंकज ने यह भी बताया था कि गौरव को मैंने जाते हुए देखा था मुबीन फौज के साथ। यह नहीं पता था कि उसने स्पष्ट नहीं हो रहा था कि मुबीन फौज के साथ गौरव के साथ एक दोस्त से 2 लड़के देख रहे थे, तो इससे कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि मुबीन एक फौज उसको उठाकर ले गए हैं कि नहीं ले गए। अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 2 उसकी माँ के द्वारा इन्वेस्टिगेशन द्वारा यह भी प्रमाणित किया गया है कि उसकी माँ तो शिनाख्त द्वारा किया गया कि इसका गौरव है, वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। और अभियोजन क्रमांक द्वारा यह बताया जा रहा था। पाँच को हिरासत में मतलब सलीम को पूछताछ की गई थी, जिससे सलीम ने यह बताया गया था कि मुबीन फिरोज और अन्य तीनों ने मतलब उसको अपहरण करने की साजिश रची गई थी। इसके द्वारा मेमोरेंडम भरा गया था और जब्ती किए गए मोबाइल को संदूक में बताया जा रहा था। उसके साक्षी थे मोहन और वन के द्वारा जब्त किया गया था, उसे द्वारा जब्ती पंचनामा किया गया था। नोडल अधिकारी क्रमांक 6 नोडल अधिकारी कपिल देव के द्वारा इस नंबर का पत्र किया जा रहा था, उसने किया जा रहा था। अभियोजन क्रमांक 7 है कपिल देव BSNL नोडल अधिकारी द्वारा इसमें साक्षी की रिपोर्ट द्वारा इस मोबाइल का जब मतलब पूरी डिटेल पूरी निकाली गई, उसके द्वारा
कोई भी यह सिद्ध नहीं हुआ। अभियोजन साक्ष्य क्रमांक 8 का ज्योति नारायण था, उसके द्वारा जो CCTV फुटेज थी उसमें यही भी स्पष्ट नहीं हो रहा था कि मोबाइल फोन ने उसकी अपहरण किया है कि नहीं, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, जैसे पेन ड्राइव लेकर किया जा रहा था। इसमें एक केस है नाम स्टेट ऑफ बिहार। यह निर्णय किया गया कि अपहरण प्रथम इत्तला रिपोर्ट संदेह पर आधारित, ये संदेह स्थापित गंभीर दो सबूतों पर स्थान नहीं ले सकता, यह विश्वसनीय के अभाव में अभियुक्त दोष सिद्ध नहीं किया जाता। इसी प्रकार द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है, यह अभियुक्त गण के द्वारा, यह साक्ष्य के द्वारा यह किया जाता कि उसके विरुद्ध लाए गए आरोपी को झूठा फंसाया जा रहा है। अभियोजन शांतिबाई की मृतक की दादी और उसकी माँ थी, जो हेतुवत एक साक्षी थी, मतलब साक्ष्य किया गया था। साक्ष्य क्रमांक 10 जो पुलिस इंस्पेक्टर उमा शंकर था, उसके द्वारा यह भी लेख कहा गया कि उसने अपने कथन में यह भी कहा गया कि गौरव एक जैसे दो लड़के थे, जो मतलब कन्फर्म नहीं हो रहा था, उसकी रिपोर्ट लिखी गई थी 912/2005 के द्वारा प्रथम रिपोर्ट लिखवाई गई थी, इसके द्वारा किया गया था। अभियोजन साक्षी और से स्वतंत्र साक्षी, मतलब अभियोजन पक्ष की तरफ से यह स्वतंत्र साक्षी नहीं हो पा रहे थे कि एक साक्ष्य भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, स्वतंत्र साक्षी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उसके द्वारा अपराध दंड धारा 363 364 के द्वारा अभियोजन साक्ष्य धारा 34 अपराध के द्वारा दोष मुक्त किया जा सकता है। यह अभियोजन साक्ष्य द्वारा किया जा सकता है कि मतलब गौरव को मारा है। इसमें सर जो मतलब तलवार पाई गई, उस तलवार में कोई भी मानव के मतलब खून नहीं पाया गया। यह साबित नहीं होता कि तलवार क्योंकि मतलब गौरव की हत्या की गई। मोटरसाइकिल पाई गई, यह भी साबित नहीं होता कि वह मुबीन की मोटरसाइकिल है स्पष्ट तौर पर। और जो सर मतलब फुटेज पाए गए CCTV फुटेज, उसमें सर यही भी स्पष्ट नहीं होता कि जो मतलब मुबीन और आरोपी जो मतलब ये लोग हैं, और स्पष्ट चेहरा नहीं दिखाई दिया उसमें सरकारी द्वारा की गई, जिस कारण उसकी साक्ष्य पर कतई विश्वास नहीं किया जा सकता। और तलवार का मानव रक्त नहीं मिला। आरोपी मुबीन को मोटरसाइकिल की भी कोई पहचान। मृतक गौरव का चचेरा भाई है, जिसकी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साक्षीगण मृतक के किसी रिश्तेदार हैं, मृतक के रिश्तेदार हैं, जिस कारण उसकी साक्ष्य पूर्णतः अविश्वसनीय है। दोष मुक्त किए गए। जैसा कि उन्होंने बोला कि जो उसकी ग्रैंड मदर थी शांतिबाई, उन्होंने FIR लॉन्च नहीं करी थी। पहले उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करी थी, क्योंकि 22 नवंबर को वो गायब हुआ था और 24 तारीख को उन्होंने मिसिंग रिपोर्ट फाइल करी थी। फिर इसके बाद जो पुलिस थी, उन्होंने इंक्वायरी करी पहले, क्योंकि FIR एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही FIR लॉन्च की जा सकती है, और मिसिंग रिपोर्ट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है। तो 1 तारीख को उन्होंने FIR लॉन्च करी, जब उन्होंने कॉलर ID इंस्टॉल करी, और 27 को और 29 को जब रैंसम के कॉल्स आए, थ्रेट के कॉल्स आए, फिर उसके बाद जाकर उन्होंने FIR लॉन्च करी और अपनी इन्वेस्टिगेशन करी। तो SWAT सीज हुई थी, उस पर कोई भी ह्यूमन ब्लड नहीं था। तो इसमें ये हो सकता है कि उन्होंने कोई और चीज़ से उसकी बॉडी को कट किया हो, और वो कहीं और दफना दिया हो या कहीं छुपा दिया हो, और SWAT उन्होंने अपनी इसलिए रखी हो कि उन लोगों पुलिस वालों को ये ना लगे कि इन्होंने मर्डर किया है उस बच्चे का। तो भी विटनेसेस रिलेटेड टू डिसीज, जो एविडेंसेस होते हैं पंजाब का, जिसमें बोला गया था द टेस्टिमनी ऑफ रिलेटेड विटनेसेस शुड बी एनालाइज्ड विद कॉशन फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी। द लॉ हियर सेज दैट द टेस्टिमनी ऑफ रिलेटेड विटनेसेस कैनॉट बी अ ग्राउंड टू डिटरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टेस्टिमनी। So if after careful analysis and scrutiny of their evidences, the version given by the witnesses appear to be clear, cogent and credible, there is no reason to discard the same. तो अगर कोई relative witness देखे इसमें कि वो एक relative है, उसके जो टेस्टिमनी है उसको डिस्कार्ड केवल इस बेसिस पे नहीं किया जा सकता। केरल राज्य EIN 1981, तो जिसमें कहा गया है कि हितवत साक्षी के सावधानी से जांचने के बाद यदि वह जांच के बाद विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है तो वह ऐसे साक्ष्यों को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कहा है कि स्वतंत्र साक्ष्यों ने प्रोसिक्यूशन स्टोरी का समर्थन नहीं किया है, उन्होंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी का समर्थन नहीं किया है, किंतु जो भी वहाँ जब्ती की गई है और उसके पंचनामा में जो हस्ताक्षर किए गए हैं उन्होंने उसका समर्थन किया है। और एक ऑफिसर द्वारा सारे केस को इन्वेस्टिगेशन किया गया है
तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 27 जो इन्होंने बोला वो एक्सेप्शन 27 के एक्सेप्शन में आता है, जिसमें क्लियरली कहा गया है कि पुलिस द्वारा कि अभियुक्त के विरुद्ध सेक्शन 20 अनुसार संस्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती है, परंतु अभियुक्त गण द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यदि पुलिस को किसी तथ्य का पता चलता है तो उसे सेक्शन 27 के अंतर्गत एडमिसेबल माना जाएगा, जो कि एसपी बाहरी बसेस बिहार राज्य AIR 1994 वाली केस में बोली गई थी। फुटेज के संबंध में कि वो क्लियर नहीं है और उसके संबंध में सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसमें एक केस है साफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में कहा गया था कि जिस पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट पेश किए हैं वह उसके पोजीशन में होना चाहिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 65B का सर्टिफिकेट अगर उसके पोजीशन में है तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, अगर उसके पोजीशन में नहीं है तो सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। और यहाँ इस केस में जो CCTV फुटेज की बात की जा रही है वो प्रोसिक्यूशन के पोजीशन में नहीं है, वो शोरूम वाले के पोजीशन में है। तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट 64B का और सर्टिफिकेट CCTV फुटेज के संबंध में कोई भी सर्टिफिकेट आवश्यक देना आवश्यक नहीं होगा। और केस है किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए विक्रम सिंह एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द appellant kidnapped a young boy for some ransom and ended up murdering him in the process. The appellant were awarded a death sentence for committing offence and punishable under section 302. अपीलार्थी में निर्णय किया गया है कि व्यापारण से पूर्व घटनाओं में अपीलार्थी की अंतर्गतता दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है। अपीलीय को दोष मुक्त किया गया है।